इंडस्ट्री की रियलिटी में बताऊं, बाहर से ना सब कुछ ग्लैमरस लगता है लोगों को कि Yeah. बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री है। मतलब अंदर आ गए तो Welcome to Siddhi Sage Show, where we dive into the journey of extraordinary professionals and uncover their stories behind their success. Today, we have a special guest named Shreya Jain, who is an actress in the TV industry, best known for her role as Meher Gill in Udayan, which brought her into the limelight. With 3 films and 2 as the lead, she continues to impress audience with her performances. Currently, she is playing the role of Adrija in Rab Rakha, right? या Okay, we are going to talk about the experiences, struggle, and of course, have some fun along the way. Let's get into it. Before we dive in, we are going to challenge them for a quick rapid fire round. Let's see if you can handle the heat. Alright? So, ओके। what's the weirdest thing you would do if you were invisible for a day? इफ आई वाज इनविजिबल फॉर अ डे, Yes. then I would probably, what do I do? God, I've never thought of this. So I would go to uh, go to some, maybe some celebrity's house and see their wardrobe and do. Okay. Fair. अगर मेरे साथ होता तो आई वुड हैव गॉन टू अ पिज्जा शॉप और मैं सारे पिज्जा खा Okay. जाती वहां पे जाके बिकॉज आई एम अ Yeah, फूडी that's सो not. लाइक पता नहीं चलता पे भी नहीं करना पड़ता ओके नेक्स्ट द वे The टू way योर हार्ट इज to my heart is food, obviously, and बस हो गया being kind to ओके people. If फेयर you're इनफ kind to other people, then yeah. ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू यू इन द स्कूल टाइम In the school time, the most embarrassing thing. I was a very studious child, and ऐसा मैंने कुछ अपनी स्कूल लाइफ में इतना कुछ किया नहीं है, तो embarrassing would be, एक बार मैं शायद गिर गई थी तो everybody started laughing, so that would be embarrassing for me. ओके आई रिमेंबर इट वाज इन 12th क्लास आई गेस मैम इको पढ़ाई थी इफ यू रिमेंबर शाइनी मैम Yeah, I know. है ना सो वो इको पढ़ा रही थी और मैं उनकी क्लास में सो गई थी उनको देखते हुए सोई थी मैं एंड शी वाज लाइक तुम्हें क्लास में नींद आ रही है आई वाज लाइक मैम सॉरी रात में सोई नहीं थी वो चैप्टर बोरिंग I था would यार never done that. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वुड यू रादर हैव यू Okay, so about myself, I'm Shreya Jain and I'm an actor and a model, and I do act in TV serials. So, about my journey, if I would say, my journey started like abruptly. I've never thought of ओके acting or something. तो मेरी जर्नी बहुत ही ऐसे ही स्टार्ट हुई थी. Like it was from pageant. My mom and dad enrolled me in a teenage fashion show. So वहां से start हुई थी. From a teenage fashion show. Then I took part in Miss Rajasthan. ओके Then I मतलब मेरी पढ़ाई के साथ साथ side by side I did some cameo roles in TV serials and some stuff. Then actually acting start हुई, like in a ओके continuous ओके role and like that. So my journey has been like this, and it's been like I've struggled for with confidence basically because I was an introvert. So my fear was to meet people and meet new people and talk to people. So it was a big fear to me. So मैं बहुत इस चीज को लेके अंडर कॉन्फिडेंट थी. आई सीक फॉर वैलिडेशन. सो नाउ माई जर्नी इज लाइक मैं धीरे धीरे सीखती गई एंड नाउ आई एम लाइक वर्किंग अपॉन माई सेल्फ. ओके दैट्स कूल एक्चुअली या. नेक्स्ट क्वेश्चन as we all have our favorite actress right मेरी बचपन में चाइल्डहुड ड्रीम था मेरा कि मैं बड़ों की दीपिका जैसी बनूं लाइक उसकी पर्सनालिटी उसका ओवरऑल जो ऑरा है उसके अकॉर्डिंग सो कहीं ना कहीं यू कैन से दीपिका वाज माय इंस्पिरेशन या. and with this I want to ask you who inspired you to become an actress So if I would say, to be honest, acting was not my goal. So I've never got inspired कि मुझे ये देख के acting करनी है. It was not my goal. It happened eventually. okay Um,
बट यू नो लाइक एवरी चाइल्ड डज, मतलब एज अ चाइल्ड मैं क्या है ना, बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखती थी। हम कॉफी विद करण देखते थे, जब मूवीज देखते थे बॉलीवुड मूवीज, तो आई हम्म, ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ कि अगर मैं वहां होती तो क्या होता। एंड आई लाइक कटरीना एट दैट टाइम अलॉट, तो मैंने भी ऐसा इंटरव्यू कुछ देखा था, तो मैं हमेशा मिरर के सामने जाके आई यूज टू डू लाइक दैट, कि डीओ की ओके, बॉटल पड़ी होती थी, मैं उससे आई यूज टू प्रिटेंड की करण जौहर में सामने वेल, बैठा है, एंड आई यूज्ड टू गिव इंटरव्यूज। तो ऐसे में करती थी, बट कभी ऐसा सोचा नहीं था, बिकॉज इट्स अ टिपिकल मिडिल क्लास का माइंडसेट होता है एक, आई गेस, कि हाँ, कोई गॉड फादर नहीं है इंडस्ट्री में, कोई नहीं है, तो कैसे ही जाएगा इंसान, मतलब व्हाई वुड समवन विल टेक मी, और मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है तो क्यों ही मुझे कोई लेगा, कैसे ही अप्रोच होगा, ये इम्पॉसिबल सा लगता था, तो कभी सोचा भी नहीं था दैट आई वुड डू दिस, बट ट्रू, इवेंचुअली इट हैपेंड। तो आई वुड से कि शायद वो मैनिफेस्ट ही किया था मैंने बिना सोचे, तो आज ये हो गया है। तो मे बी या बेसिकली लाइक आपने करण जौहर वाला वो सब सीन करा, सो उसके बेसिस पे। so that's what I think. तो I've never got like that, but yeah, मैंने it's like एक प्रोसेस था, तो मैं यहाँ तक पहुंच गई, कभी ओके, इंस्पिरेशन ऐसे कुछ नहीं रही। so did your family and friends cheered you, or they think you were crazy going for this field? So it was mixed actually, but Okay. I am very very lucky to have such parents, क्योंकि जैसे मैंने बताया they've only pushed me Hmm. हर चीज के लिए, तो मेरे पेरेंट्स का इतना सपोर्ट है, शायद मैं खुद अगर अकेली होती ना तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, जितना मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है, जितना पुश किया है, तो आज मैं जहाँ हूँ वहां हूँ। तो दे हैव सपोर्टेड मी, माई होल फैमिली, इनफैक्ट माई दादा दादी चाचा चाची भाई बहन जो भी हैं, दे ऑल हैव सपोर्टेड मी थ्रू आउट, कि तुझे जो करना है तू कर, वी आर देयर विद यू। हाँ, कुछ टाइम जैसे आए भी थे जहाँ पे मतलब एक्सटेंडेड रिलेटिव फैमिलीज जो होती है, दे Hmm. यूज टू से कि इट्स नॉट अ गुड इंडस्ट्री, बिकॉज ऑब्वियसली सबने सुना है इस बारे में, सो True. इट्स लाइक दैट, बट नाउ दे ऑल आर ओके कि अब पहुंच गई है, तो दे ऑल आर लाइक चलो अच्छा कर रही है बेटी कुछ, बट या I've gotten support from my parents, जो जिसका सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो Hmm. या। Fair. All right. So, as you know, rejection is a big part of life, right? अपने को हर phases में rejection मिलता है due to whatever reasons. या Especially आपकी फील्ड में तो rejection बहुत ज्यादा common है. कोई रोल नहीं मिला या मे बी किसी से कुछ भी बात हुई उन सब में, राइट? सो कैन यू शेयर दैट वन एक्सपीरियंस where you face this and how you handle it? तो एज यू सेड रिजेक्शन तो हर कहीं होता है, इन एवरी फील्ड यू फेस रिजेक्शन, दैट्स ट्रू, बट इन आवर Hmm. इंडस्ट्री इट इज, या इट इज लाइक मोर कॉमन, एंड ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाता है कभी कभी रिजेक्शन के टाइम पे लोग, कभी भी आप True. ऑडिशन देने जाते हो, तो इस ये अजीब अजीब तरीके से बोल करके कि ये सही नहीं है वो सही नहीं है, ऐसे बोल के रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, लोग ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं, और मे बी उनको नहीं चाहिए होता है तो कुछ भी बहाना भी बनाते हैं, बहुत चीजें Yeah. होती है, तो या बहुत रिजेक्शन तो झेलना ही पड़ता है, बीइंग एन एक्टर आपको बहुत चीजें देखी भी जाती है, आपकी एक्टिंग अच्छी होगी, बट अगर आप उस रोल के लिए दिख सही नहीं रहे हो जिस तरीके से उन्होंने इमेजिन किया था, देन ऑल्सो दे Hmm. रिजेक्ट यू, बट योर एक्टिंग योर टैलेंट इज गुड, बट वो रोल के लिए इफ यू आर नॉट फिट देन दे ऑल्सो रिजेक्ट यू, तो बहुत ज्यादा रिजेक्शन Hmm. होता है। एंड या मतलब जब मैं कह सकती हूँ जब मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, मैं लास्ट उस पे थी मेरे ग्रेजुएशन के, तब Hmm. मुझे एक ऑडिशन आया था, एंड वो Okay. सीधे ही लीड का ऑडिशन था फॉर अ टीवी सीरियल। तो Nice. एग्जैक्टली मतलब फर्स्ट टाइम मुझे लीड के लिए अप्रोच किया गया था, Hmm. तो आई गेव ऑडिशन, मैंने अपना बेस्ट दिया, सब कुछ दिया, एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, मतलब बहुत सारे राउंड्स होते हैं ऑडिशन के, उसके बाद दे सिलेक्टेड मी, दे टोल्ड मी कि यू सिलेक्टेड, एंड उन्होंने बजट वजट सबकी बात कर ली, आपको मुंबई आना पड़ेगा, एंड इस तरीके से हम सारी चीजें प्रोसीड करेंगे, यू हैव टू बी लाइक दिस, ये लोग टेस्ट होगा एंड एवरीथिंग, तो ये सब बोला। तो उन्होंने कहा ठीक, तो उन्होंने बोला 2-4 दिन में हम आपको बताते हैं कब आना है क्या नहीं है। देन आई वेटेड फॉर द कॉल फॉर 2-3 डेज, कॉल नहीं आया, तो फिर मैंने ही कॉल किया उन्हें कि क्या हुआ मैम,
आपने बोला था तो मुंबई आना है, ये है तो प्लीज बता दीजिए, बिकॉज मुझे भी बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है, आने से एकदम से तो मैं मुंबई नहीं आ सकती ना। ट्रू। तो देन शी सेड, ये किसने बोला आपको? मैंने कहा यू ओनली टोल्ड मी। बोले नहीं नहीं, इट्स लाइक अभी आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, 2-3 लड़कियां और हैं, और अभी ऑडिशंस चल रहे हैं, द ऑडिशन प्रोसेस आर स्टिल गोइंग ऑन। मैंने कहा मैम, यू टोल्ड मी दैट यू आर सिलेक्टेड, आपने बजट की भी बात कर ली, लुक टेस्ट की भी बात कर ली, यू टोल्ड मी टू कम टू बॉम्बे। तो बोले नहीं नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट, हम आपको कॉल करते हैं। देन द सो कॉल नेवर केम। उन्होंने मे बी उन्हें कोई बेटर मिल गया, या फिर मे बी उन्हें ऐसा होगा कि अभी उन्हें शूटिंग पॉज कर दी, समथिंग लाइक दैट, या फिर मे प्रॉपरली बी, बट रिजेक्ट दे, किया। नहीं नहीं, दे चोज समवन एल्स ओनली। जितना ओके। मुझे पता है, जितना टीवी जो नाम उन्होंने बताया था, देन आई सर्च्ड, तो किसी और को ही उन्होंने कास्ट कर लिया था। तो आई ओके। नेवर गॉट द कॉल कि नहीं आपको नहीं होगा, हम नेक्स्ट में ट्राई करेंगे, नेवर, नथिंग। सो दिस वाज द फर्स्ट रिजेक्शन दैट आई फेस्ड। आपको फील कैसा हुआ फिर? वेरी बैड, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद मैंने तो तैयारियां भी स्टार्ट कर दी थी, एवरीथिंग हैपेंड। तो या। फिर उसके बाद तो इंसान को जब आप एकदम से मना कर दोगे, तो आई फेल्ट रियली बैड, बट देन अगेन माय डैड वाज देयर विद मी, सो ही टोल्ड मी कि नहीं कोई बात नहीं, हम ट्राई करते रहेंगे, तू टेंशन मत ले। और उन्होंने एक ही बात कहते हैं वो मुझसे, उन्होंने भी सुना था अमिताभ बच्चन को ही बोलते हुए कि उनके पापा बोलते थे कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। तो ट्रू। दिस इज व्हाट इट इज। तो पापा ने कहा ठीक है, भगवान पे छोड़ दे, शायद इससे अच्छी और अपॉर्चुनिटी तुझे मिलने वाली है। सो देन लाइक दैट आई जस्ट थॉट कि नहीं यार, इतना नहीं सोचना है, अपन अपना काम करते हैं, आ जाएगा। हो जाएगा, राइट। So what's an unspoken industry rule no one tells you until you are in? अनस्पोकन इंडस्ट्री रूल, इफ आई वुड से, इंडस्ट्री की रियलिटी में बताऊं, बाहर से ना सब कुछ ग्लैमरस लगता है लोगों को, कि Yeah. बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री है। मतलब अंदर आ गए तो आप बस पैसा है, Uh-huh. फेम है, सब है, True. टू बी ऑनेस्ट। बट इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। So मतलब my whole बट life was a lie. या, माइंड टू। Okay. सो मैं टीवी इंडस्ट्री की बात करती हूँ, बाकी तो Hmm. अभी आई डोंट नो अबाउट बॉलीवुड एंड एवरीथिंग, बट या, मतलब बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। 12 घंटे की वर्किंग शिफ्ट होती है हमारी, Hmm. 12 आवर्स वी हैव टू बी ऑन सेट, एंड बीइंग द लीड आपको ओवर टाइम तो करना ही होता है रोज। एंड हर सीन जो होता है वो आपके बिना हो ही नहीं सकता है, सो यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन द सेट एवरी टाइम। जो इमोशन वो बोले आपको वो लेकर आना पड़ता है, यू हैव टू हैव दैट एनर्जी कि आप खड़े भी रहो पूरे पूरे 12 घंटे, यू हैव टू स्टैंड एंड डू द थिंग। तो एक तो ये चीज थी, किसी ने बताई नहीं थी कि ये सारी चीजें भी होती है। देन देर इज ऑब्वियसली रिजेक्शन, Yeah. कि आपको 6-6 महीने, साल साल भी घर बैठे रहना पड़ सकता है, बिकॉज अगर आपके टाइप का रोल नहीं आया तो नहीं आया, सो यू हैव टू Hmm. कीप ऑन वेटिंग। सो Sure. नोबडी टोल्ड दैट, सो इट वाज एन अनस्पोकन थिंग। Okay. All right. Next question I would say, what's the most unexpected lesson the industry has taught you? Lesson that industry has taught me is to be patience, I think. Okay. Patience. And why would you say that? As I've told, rejections, you have to wait Hmm. till years. मतलब आप एक बार काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो लाइक यू डू 9 to 5 जॉब, इट्स अ स्टेबल जॉब। तो आपको पता True. है कि आप कर रहे हो सालों तक काम, आपके पास पैसा आ रहा है, यू कैन अर्न योर लिविंग। बट हियर सीरियल कभी भी बंद भी हो सकता है, इफ टीआरपी इज नॉट कमिंग। तो 6 महीने में भी सीरियल बंद हो जाते हैं, 3 महीने में भी बंद हो जाते हैं, सालों साल Hmm. भी चल जाते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते हो। और उसके बाद आपको कब मिलेगा, यू नेवर नो। आपको 1-2 साल भी घर पे बैठे रहना पड़ सकता है, और मे बी 1-2 महीने में भी आपको नया शो मिल सकता है। तो यू हैव टू बी पेशेंट अगर आपको इस लाइन में काम करना है तो। एंड टू Okay. डील विद पीपल, टू बी ऑनेस्ट, टू डील विद प्रोडक्शन पीपल एंड एवरीवन, so you It's have too to be hassle. patient. It's so Okay. traumatic to deal with people, and like me, because I was like, I don't like to. Got it. So Okay. yeah.
Enough of serious talk. Let's get into some Yeah. funny, ridiculous questions. Okay. Okay. All right. So my first question would be, um, okay, what's the most unhinged DM you have received from a fan? Oh God. I have to be मतलब बहुत ही creepy से भी DMs आते हैं which I cannot even say. So people just like कि, can I get can we be friends or can I get your number or something like Yeah. that. And because अभी मैं negative भी play कर रही हूँ in my serial, so a lot of people are like भाई चढ़ जाते हैं आपके ऊपर आके ये सोच के कि रियल लाइफ में यू आर नेगेटिव, तो लोग तो भाई साहब तू इसको इतना परेशान क्यों कर रही है, तेरी वजह से तेरी बहन के साथ ये हो रहा है। मैंने कहा यार प्लीज, आई एम नॉट लाइक दिस इन रियल लाइफ। सो पीपल लाइक बहुत खतरनाक डीएम्स होते हैं। Okay, got it. Next question. Imagine you are in a dramatic Bollywood scene, but the only prop you have is banana. How would you use it? ओके, ओके, बनाना। Yeah. इट्स वेरी आई वुड probably यूज इट एज अ, अगर एक्शन मूवी चल रही है एंड क्लाइमैक्स चल रहा है तो आई वुड Hmm. यूज इट एज अ गन, probably a gun, एंड मैं उसे Yellow gun. अपने येलो गन Okay. विलन पे पॉइंट आउट करके आई वुड शूट हिम बैक। And what about a romantic film? रोमांट गॉड ये तो बहुत ज्यादा Okay, आई डोंट थिंक आई कैन से इट हियर got जहां मेरा दिमाग it. चल Next question. Which TV cliche secretly makes you laugh? Slow mo entry, memory loss, or dramatic dhum tana nana nana music? ओ गॉड, ड्रामेटिक धूम ताना नाना, बाप रे। Especially इट्स in तो, that Gopi Bhau serial. अरे यार इट्स अमेजिंग, कुछ भी हो रहा है धूम ताना नाना नाना। इट्स द मोस्ट हिलेरियस थिंग एवर आई सीन। True, it जो is. हमारे अब नहीं होता है हमारी सीरियल में, Hmm. फॉर्चुनेटली। होता फिर होता फिर तो वी हैव टू डू इट। फिर तो भाई हम लोग सीन के बीच में ही हंस देते, वो धूमता ना ना ना, हम लोग सोच ही लेते हैं कि अब इस पे ये ट्यून लगने वाली है, अब Hmm. इस पे ये लगेगी, फिर वी आर लाइक Okay. Imagine if your first audition was a meme, what would it be? मीम। माय फर्स्ट Hmm. ऑडिशन, uh if my first audition would be a meme, I guess expectation versus reality वाला Ah, मीम okay. होना चाहिए। तो Got it. एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मैं जाऊंगी फुल ग्लैम हो करके और एक बार में अपना सारा लाइंस बोल दूंगी एंड एवरीवन विल बी Hmm. लाइक awestruck with my performance, clapping for me, standing ovation. But the reality is फंबल हो रहे हैं, ऑकवर्ड हो रहा है, 10 बार टेक हो रहे हैं तो दैट वुड बी द Got रियलिटी। it. All right. Let's get back to serious questions now. Uh, नोन्स में है जो बनना चाह रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं देना चाहूंगी कि जस्ट बी कंसिस्टेंट बिकॉज इट्स नॉट Hmm. इजी टू बी एन एक्टर एंड टू फेस रिजेक्शंस एंड टू वेट। सो जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड बी योरसेल्फ एंड प्लीज स्टे कॉन्फिडेंस बिकॉज लोग आपकी रियल पर्सनालिटी भी देखते हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू प्ले। सो Hmm. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आई नो सब लोग इनिशियली नर्वस फील करते हैं बट इट्स लाइक हर कोई इंसान है, सबसे गलतियां होती है, सबसे सब कुछ होता है, कोई परफेक्ट होता नहीं है। तो जस्ट बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क, यू विल गेट इट फॉर श्योर। Okay. And what's the best advice you have received till yet? बेस्ट एडवाइस दैट आई हैव रिसीव्ड um इज फ्रॉम माय डायरेक्टर फ्रॉम माय फर्स्ट शो। तो उन्होंने बोला था कि बेटा
जब मतलब हम काम करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन द इंडस्ट्री। Hmm. बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आजू बाजू के, मतलब कितने लोग होते हैं ना सेट पे। तो बहुत लोग होते हैं जो आपको मैनिपुलेट भी करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ट्राई टू पुल यू डाउन। बट डोंट डू नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप। तो ही टोल्ड मी कि जो ब्लाइंडर्स होते हैं ना घोड़े के, वो ऐसे हाँ, लगा के यहाँ चलो और सीधे अपने फोकस, अपने लक्ष्य को देखो, इधर उधर देखना ही नहीं है। यू जस्ट डू योर वर्क, दैट्स इट। डोंट फॉल फॉर द ट्रैप that's एंड a मैनिपुलेशन। really good advice. Like you या can use it everywhere. या I like it. Okay. If you had to describe your acting journey in a movie title, what would it be and why? hmm my acting Everyone is gonna journey. judge you. So I would take my favorite movie's name, that is Zindagi Na Milegi Dobara. Okay. But why this one? Why not Ye Jawani Hai Diwani? Or maybe Three Idiots or anything? बिकॉज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में भी जैसे हमने देखा था कि बहुत ही मतलब उसमें भी जब तीनों जो सब लोग होते हैं वो एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी पर निकल जाते हैं। दे डोंट नो Hmm. व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, क्या होगा, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। जैसे हमने ऋतिक रोशन को देखा था, वो स्कूबा डाइविंग करने जाता है, उसको उसका Yeah. फियर होता है, अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकलता है। तो मेरी लाइफ में भी यही हुआ है भाई। मैं अपने कंफर्ट जोन से बहुत बाहर निकली हूँ। मतलब मैं लिटरली आई मैं ऐसे बोल भी नहीं पाती थी, बहुत आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट। तो Okay. लोगों से मिलना बोलना वॉज लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी। सो आई हैव कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, और मैंने मतलब इतना कुछ एक्सप्लोर किया है लाइफ में, तो इट्स लाइक दैट। सो आई वुड Okay. So गिव you were anti-social kind of person. वेरी मच। Okay. And right now you are working in Orion as Mehegil, right? नो, You are not working with. इट्स Okay, it's इट्स over. नॉट इन, या इट्स ओवर। Okay, okay. अभी मैं आई एम वर्किंग इन रबराखा एज अ द्रीजा। Okay. So tell me about your character. उसका कितना पॉजिटिव है, किस टाइप की है, और आपके रियल्स में उसके कितने साथ मैचेस होते हैं? रिजोनेट, रिलेटेबल है, पूरी अलग है, क्या है? मतलब अभी वाला ही बताना है या उड़ारिया वाला भी अभी बता वाला, सकती हूँ? अभी वाला। अभी वाला। हम्म. तो अभी वाला, आई एम टोटली opposite to my character. So basically my character is negative, extremely negative. Like she's very insecure, very negative. वो साजिशें ही चलती रहती है अपनी बहन के खिलाफ में। उसको कोई Okay. और काम नहीं है, आड़े टेढ़े मुंह बनाती रहेगी, साजिश चलती रहेगी ताकि सब मुझे पसंद करे, उसे ना पसंद करे। पर उसकी साजिशें जो है वो फेल होती रहती है। सो इट्स लाइक Typical टिपिकल Indian वैम्प, serial. या वैम्प ऑफ द शो। Got तो it. I am totally opposite to it. In real life, it's like I can't do all of these suggestions और ये सारी चीजें, like एक सिंगल चीज भी नहीं होगी मेरे कैरेक्टर में Hmm. जो कि रियल लाइफ में है। So which Okay. also makes it challenging to play. True, it does. All right. Would you like to say anything to the audience or personal question? अगर Yeah. आप एक्टिंग में नहीं जाते तो what career would you choose? Don't तो tell me यार doctor. नहीं So, नहीं, I was a commerce student यार। okay. I hope you are So not gonna say CA then. CA, CA. नो नो नो, आई वॉज Thank अ God. ब्राइट स्टूडेंट, बट मेरा फिर जाते जाते ना एंड में पढ़ाई से उठ गया था, अब नहीं होती। बस हो गया. हाँ। तो मैं जब एक्टिंग में आई तो उस टाइम मतलब मेरा ग्रेजुएशन ओवर ही हुआ था, तो मैं एमबीए करने वाली थी। Hmm. तो वो रह गया मेरा भी करना, तो मैं सीधा एक्टिंग में आ गई। तो मे बी शायद मैं अभी वही कर रही होती एमबीए, या Okay. फिर किसी 9 to 5 जॉब में होती, विच इज नॉट Ah, बैड, बट at the same आई time, it's पर्सनली, like, yeah, okay. yeah, it's monotonous and I don't like it, and I'm loving because ठीक है, acting is like every day is a new day. You're doing Hmm. something thrilling and out of the comfort zone, which I've learned a lot. So I would say अच्छा है acting में आ गई। Okay. Who's your favorite character from your cast? From my current cast, Yeah. my favorite character, uh,
I would say my mom, जो मेरी मम्मा बनी है in Okay. real life, is also she's very sweet, very caring. मतलब वो सेट पे भी मेरा उसी तरीके से ध्यान रखती हैं. And her character is also, I mean, the way she portrays her character, I don't know Hmm. whether people like her character or not. What That's a different story. But the way she portrays and the way she acts, it's so realistic. मतलब इतना सीखने को मिलता है ना. Hmm. She's brilliant actress and a brilliant human being. So I love Okay. her. Would you like to say her name? Her name is Jyoti Mukherjee. Okay. तो रानी मुखर्जी की शी इज भाभी. So family में ही ऐसा है फिर तो. या. Okay. Alright then. यही questions है मेरे पास. Before we wrap up, I just want to take a moment to thank you, Shreyadi, for joining us today. It was an incredible to hear your insights, experience, and the journey that brought you here. Your words are definitely going to inspire so many people watching this. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and share to Siddhi Set Show. Until next time, stay awesome and keep creating.